اختر پٹھان کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی تھی۔ گولیوں نے اس کی ہڈیاں توڑ دی تھی اور خون بھی بہت سا بہہ گیا تھا۔ اختر پٹھان جو دوسروں کو پتھر دل سے موت کی وادی میں پہنچا کر اطمینان کی سانس لیتا تھا، اب اپنے سامنے موت کو دیکھ کر اس کی حالت ایک چھوٹے بچے جیسی تھی۔ پولیس نے اس کا بیان قلم بند کر لیا تھا۔ ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے درمیان اس نے بہت کچھ بتا دیا تھا۔ کئی راز اس نے عیاں کر دیے تھے۔ ہاشم زبیری کے چہرے سے اس نے نقاب ہٹا دیا تھا۔ جس وقت پولیس ہاشم زبیری کو گرفت میں کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، اس وقت پولیس ہی کے ایک آدمی نے ہاشم زبیری کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ پولیس والا ہاشم زبیری کے لیے پہلے کا مخبر کا کردار ادا کر چکا تھا، تب اس سے اچھا خاصا انعام بھی ملا تھا۔ جیسے ہی ہاشم زبیری کے علم میں ساری بات آئی، اس نے اپنے مینیجر کو اہم ہدایات کی، اپنے وکیل کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور اپنا ایک بیگ تیار کر لیا۔ یہ اتفاقی تھا کہ اس نے بزنس ٹور کے لیے پہلے سے ٹکٹ بک کروائی ہوئی تھی، لیکن ہاشم زبیری کے جانے کا پروگرام ملتوی ہو رہا تھا۔ اب اچانک اس صورتحال نے ہاشم زبیری کو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاشم زبیری جانے سے پہلے اپنی بیمار بیوی کے کمرے میں گیا، جو بیٹی کے اچانک چلے جانے پر اور بھی بیمار ہو گئی تھی۔ ممتاز بیگم نے خالی اور اداس نگاہوں سے ہاشم زبیری کی طرف دیکھا تو بولا، میں کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ ملازمین تمہاری اچھی دیکھ بھال کریں گے، فکر نہیں کرنی، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ ممتاز بیگم کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ہاشم زبیری کو سننے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی سیاہ شیشوں والی کار میں بیٹھا اور اپنے بڑے بنگلے کا گیٹ عبور کر گیا۔ کار کی رفتار بہت تیز تھی۔ ایئرپورٹ جانے کے لیے ہاشم زبیری کی ہدایت پر ڈرائیور نے عام راستے کی بجائے وہ راستہ اختیار کیا تھا جو کچھ دور بھی تھا اور الگ بھی تھا۔ ایئرپورٹ کی عمارت میں جو ہی کار رکی، ہاشم زبیری اپنا بیگ پکڑ کر باہر نکلا اور ایئرپورٹ کی عمارت میں چلا گیا۔ ہاشم زبیری کے اندر عجلت اور بے چینی تھی۔ اس نے اپنے کاغذات چیک کرائے اور ضروری کارروائی کے بعد وہ اندر چلا گیا۔ جیسے ہی ہاشم زبیری نے دروازہ عبور کیا، اس کی چال ہی بدل گئی۔ اس کے جسم میں دوڑتی بے چینی معدوم ہو گئی، چہرے پر اطمینان آ گیا۔ وہ ایک کرسی پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر فرونے تھی اور وہ اپنے آپ سے بولا، اس ملک میں قانون عام لوگوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے۔ ہم جیسے پیسے والوں کے لیے قانون نہیں۔ ہمارے پاس پیسہ ہے، جب چاہے ملک سے نکل جائیں، جب چاہے آ جائیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہم لوگوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلے جانا۔ ہاشم زبیری مسکرایا اور پھر بولا، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ ابھی کچھ دیر کے بعد جہاز آسمان کی بلندیوں پر ہوگا اور میرے سر پر ایک نیا آسمان ہوگا۔ کوئی نہیں پکڑ سکتا مجھے، میں ہاشم زبیری ہوں، اس ملک کا امیر ترین بزنس مین۔ ہاشم زبیری نے مسکرا کر دامیا دیکھا اور اپنی کلائی پر وقت دیکھنے کے بعد ٹوائلٹ جانے کو کھڑا ہوا۔ وہ خراما فرونے سے چلتا ہوا ٹوائلٹ تک گیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر اس نے ایک بار پھر مسکرا کر گردن رکڑائی اور چلتا ہوا اپنی سیٹ کی طرف جانے لگا۔ اسی اثنا میں مسافر جہاز میں سوار ہونے کے لیے اس جانب جانے لگے۔ ہاشم زبیری کے اندر اور بھی زوم آ گیا۔ وہ دل میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، ہاشم زبیری کسی کی گرفت میں نہیں آ سکتا۔ اچانک جانے اس کے پیر کے نیچے کیا آ گیا، اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ بری طرح سے پھسل کر نیچے گرتے ہی اس کا سر فرش کے ساتھ ایسا ٹکرایا جیسے کسی نے ہاشم زبیری کو اٹھا کر نیچے پٹک دیا ہو۔ سر کے جانے کون سے حصے پر چوٹ لگی، کوئی خون نہیں نکلا، بس جسم نڈھال اور بے جان سا ہو گیا۔ ہاشم زبیری کا منہ کھلا ہوا تھا، اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ کھڑے ہو کر اس کے طرف متحیر اور تعصب بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہاشم زبیری کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا، اور وہ سب کے سامنے مردہ پڑا رہ گیا۔ ہاشم زبیری یہ بھول گیا تھا کہ انسان کتنے بھی جرم کر لے، وہ کتنا بھی سب سے بچ جائے، لیکن جب خدا کی گرفت آتی ہے تو پھر کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے اور اچانک کیا ہو گیا ہے۔ سحر بانو کئی دنوں سے اس بڑے بنگلے میں تھی۔ اس بنگلے میں دنیا کی ہر آسائش اور آرائش تھی۔ کھانے پینے کا سامان اتنا وافر تھا کہ ایک اکیلی جان سحر بانو کئی دنوں کے ساتھ مزید کھا پی سکتی تھی۔ سحر بانو دن اور رات کے پہر کئی بار ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ وہ کئی بار فریج کھول کر دیکھتی، جہاں پھل، گوشت، مچھلی اور کھانے پینے کا جانے کیا کیا سامان موجود تھا۔ بنگلے کی ان خوبصورت دیواروں میں سحر بانو قید ہو گئی تھی۔ یہ احساس بڑی شدت سے اسے کئی بار جھنجھوڑتا تھا کہ زندگی ان آسائشوں کا نام نہیں، بلکہ زندگی ان رشتوں کا نام ہے جو انمول ہوتے ہیں۔ وہ رشتے جو ایک دوسرے انسان سے دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہی زندگی ہوتے ہیں، وہی سانس ہوتے ہیں، اور وہی سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ سحر بانو کو جنید کی بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ ایک ایسا رشتہ تھا جو اس دنیا میں سحر بانو کی امید تھی۔ اس تنہائی میں سحر بانو کو جنید کی یاد اور بھی شدت سے آنے لگی تھی۔ رات کا وقت تھا اور سحر بانو رات کے کھانے میں ایک سیب کھا کر سیڑھیوں میں اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں گیٹ کی بیل ہوئی اور سحر بانو ایک دم چونک گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ سحر بانو نے سوچا کہ کون ہو سکتا ہے۔
कुछ देर के बाद 2-3 बार फिर बेल हुई। सहरबानो ने गेट फोन उठाकर घबराई आवाज में पूछा, कौन है? मैं जुनेद हूँ, गेट खोलो सहरबानो। बाहर से जुनेद की आवाज आई। सहरबानो को ऐसा लगा जैसे सहरा में भटकते हुए को अचानक पानी मिल जाए। वो गेट की तरफ दौड़ी और गेट खोल दिया। सामने जुनेद खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक बार फिर मिल गए हैं। जुनेद को सहरबानो अंदर ले गई। जुनेद सजे सजाए हुए बंगले को हैरत ज़दा होकर देख रहा था। कई सवाल इसके दिमाग में उभरने लगे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम एक बार फिर मिल गए हैं। मुझे तो यूँ लग रहा जैसे अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे। और जब गांव में मैंने तुमको देखा तो मेरा दिल चाहा कि मैं अभी तुम्हें मुखातिब कर लूँ, लेकिन इस मौके पर खामोशी ही भली थी। सहरबानो ने कहा, वो मौका ही ऐसा था। मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो गया था और आखिरकार मैं तुम तक पहुंच ही गया। जुनेद बोला। तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? सहरबानो ने पूछा। तुम तक पहुँचने की कीमत अदा करके आया हूँ। जुनेद के चेहरे पर मतानत आ गई। क्या कीमत अदा की है तुमने? सहरबानो ने उसकी तरफ देखा। तुमसे मिलने की कीमत मामूली थी। ये बताओ, तुमने ये बंगला खरीदा है? जुनेद ने दाएं बाएं नजरें घुमाई। सहरबानो कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, अजीब होते हैं वो लोग जो अलग ही सोचते हैं। ये दुनिया कैसे कैसे लोगों की दुनिया है। इंसान पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन कुछ भी जान नहीं पाता। सहरबानो ने कहकर इस बंगले में आने से लेकर बंगले की मालकन बनने की कहानी जुनेद को सुना दी। जुनेद खामोशी से सुनता रहा। जब सहरबानो चुप हुई तो दोनों के दरमियान खामोशी हायल हो गई थी। फिर इस खामोशी को जुनेद ने तोड़ा। जिंदगी की सांसें हाशिम जुबैरी के साए में चलती थी तो यही गुमान होता था कि दुनिया यही है। इस जगह से निकला तो पता चला कि दुनिया मैंने तो देखी ही नहीं। गलत है कि गुलाम वही होता है जो किसी इंसान का गुलाम हो। किसी इंसान का गुलाम होकर ही गुलामी में जिंदगी नहीं गुजरती है। इस दुनिया में सभी गुलाम हैं। कोई दौलत का गुलाम बनकर इंसानियत को भूला हुआ है। कोई किसी के इश्क में उतला होकर गुलामी की सांसें ले रहा है। कोई जुल्म करने में इतना आगे निकल गया है कि वो इस गुलामी में जीते हुए लुत्फानंदोज हो रहा है। हम सब गुलाम हैं, लेकिन सच्चा और हकीकी गुलाम वही है जो खुदा और रसूल की गुलामी में ज़िंदगी की सांसें लेकर अपनी आखिरत को संवार जाता है। वरना यहाँ तवाना, घुमंड और गुरूर से जीकर खुश होने वाले वहशी ज़िंदगी की शाहराह पर ऐसे रवादवा हैं कि इंजाम की कोई फिक्र ही नहीं। इंतकाम की पगडंडी पर चलते हुए दिल पर कोई बोझ महसूस नहीं करते ये लोग। कोई पैसे के लिए किसी को मरवा रहा है और कोई इसलिए मरने मारने पर तुला हुआ है कि दूसरे से ज़्यादा दौलत चाहता है। जो उसे मिल रहा है वो इसे अपने लिए नाकाफ़ी समझता है। जुनेद ने कुछ तवक्कुफ के बाद सहरबानो की तरफ देखकर कहा, हम ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। हम जिंदगी का सफ़र किसी के महल को अपना साहिबान बनाकर तय नहीं करेंगे। जिसका ये बंगला है हम इसको वापस कर देंगे। जैसा तुम कहो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिसका ये बंगला है वो मर चुका है। उसकी औलाद तो जिंदा है ना? हाँ, इनकी औलाद तो है। जुनेद ने दाएं देखा और गुलदान से प्लास्टिक का फूल निकालकर सहरबानो की तरफ बढ़ाते हुए जुनेद ने बड़ी अपनाई से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सहरबानो इसके हाथ से फूले मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरे दिल में जाने की अजीब सी हलचल हुई थी, और जब तुम मुझसे जुदा हुई तो मेरे दिल में ऐसी बेचैनी दौड़ने लगी थी जिसका इजहार करना मेरे लिए मुश्किल है। ये मोहब्बत भी एक ऐसा फूल है, दिल की ज़मीन पर खिलता है तो पता भी नहीं चलता। जब एक मसूर कुन खुशबू महसूस होती है तो पता चलता है कि मोहब्बत हो चुकी है। तुम सच कह रहे हो। चलो अब तैयार हो जाओ, हम ये बंगले के मालिक को वापस करने के लिए जा रहे हैं। जुनेद ने कहा, ये बंगला किसको वापस करेंगे? इस शख्स के बेटे को। जुनेद ने कुछ सोचकर जवाब दिया, तुम इस बंगले के कागजात ले लो। जुनेद कहकर अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और मोबाइल फ़ोन में एक ही नंबर महफूज था जो आज ही इसने महफूज किया था। जुनेद ने वो नंबर मिलाया और दूसरी तरफ से मोबाइल फ़ोन के ऑन होने का इंतजार करने लगा। तेज बैल ने वकील रिजवी को चुका दिया। इस वक्त वो घर में बनाए हुए ऑफिस में बैठा कानून की कोई मोटी किताब पढ़ रहा था। ये ऑफिस इसने घर के एक तरफ बनाया था जिसका रास्ता बाहर की तरफ से भी गेट तक जाता था। रिजवी ने इंटरकॉम उठाकर चौकीदार को हदायत की कि जो कोई भी है इसे ऑफिस में भेज दे। कुछ देर के बाद मुस्कुराते हुए किसी फाते की तरह एहतशाम सामने खड़ा था। रिजवी इसकी तरफ मुतहैयर निगाहों से देखने लगा। क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। बात ही खुश होने की है। कोई लॉटरी लग गई है? हाँ, आखिरकार लॉटरी लगी गई मिस्टर रिजवी। वो काम होगा जिसको शायद इतनी जल्दी ना होता। ये इश्क भी बड़ी अजीब चीज़ है। इश्क के पीछे लोग किसी की जान लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और इस आशिक ने अपनी महबूबा के लिए जान ले ही ली। एहतशाम की आवाज़ में शोखी थी। किस आशिक की बात कर रहे हो और किसने किसकी जान ले ली? रिजवी इसकी तरफ देख रहा था। छोड़े सारी बातें, अब दौलत के अंबार से मेरा हिस्सा आप निकालें। मैंने बड़ा सब्र किया है, अपने आप पर जबर करके बैठा रहा हूँ। आग हूँ लेकिन बर्फ की तरह रखा है मैंने अपने आप को, एहतशाम ने कहा।
मुझे अभी तक तुम्हारी एक भी बात समझ में नहीं आई कि तुम कहना क्या चाहते हो और क्या कह रहे हो, रिजवी बोला। मेरी एक बार भी समझ में नहीं आई। एहतशाम हैरत से चौंका। हाँ, कमाल है, आप इतने नासमझ तो नहीं है कि मेरी बात को समझ ही ना सके। आपने कहा था कि नसीर अहमद को मैं रास्ते से हटा दूं तो जायदाद में से एक बड़ा हिस्सा आप मेरे नाम लगवा देंगे, एहतशाम ने वजाहत की। अब क्या किया है तुमने? अब मैंने नसीर अहमद को रास्ते से हटा दिया है, एहतशाम ने अपना चेहरा इसके कान के पास लाते मुस्कुराते हुए बताया। रिजवी को एक झटका लगा। ये क्या कह रहे हो तुम? वही कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं, एहतशाम ने कहा। मैंने नसीर अहमद को रास्ते से हटा दिया है। ये काम तुमने कैसे किया? इसकी तफसील जानना आपके लिए ज़रूरी है क्या? आपने जो कहा था वो मैंने कर दिया है, अब आप वो करेंगे जो करने का काम है। फजूल बातों के बिल्कुल भी वक्त नहीं। तुमने अपने हाथ खून से रंग लिए। रिजवी को हैरत हो रही थी। मैं तो ये समझता था कि तुमने सारी उम्र बिजनेसमैन की तरह बिजनेस ही किया है। दौलत के लिए कब किसी का खून सफेद हो जाए, इन हालात में कुछ कहा नहीं जा सकता। मिस्टर रिजवी, आप यही बातें करते रहेंगे या फिर कोई काम भी बात की शुरू करेंगे? एहतशाम को बेचैनी हो रही थी। मैं कह रहा हूँ कि वक्त नहीं है, एक एक लम्हा कीमती है। सबको इतना होने से पहले से बहुत सी जायदाद का मालिक बन जाना चाहता हूँ। आपने कहा था कि आप तमाम कागजात तैयार रखेंगे। रिजवी ने कुछ लम्हे एहतशाम की तरफ देखा और बोला, सब कुछ तैयार है। रातों रात तुम मुश्ताक अहमद की जायदाद के हिस्सेदार बन सकते हो और हिस्सेदार मैं बनाऊंगा। कानून की जंजीर मेरे हाथ में है, जैसे हिलाऊंगा वैसे हिलेगी। रिजवी के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी। तो फिर देर किस बात की है? देर डील की है। डील? एहतशाम चौंका। सब कुछ खुद ही खाने का इरादा है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा इस बहती हुई गंगा से, रिजवी ने कहा। तुम भी कुछ चाहते हो? एहतशाम शरारत से मुस्कुराया। डील करो ताकि मैं अपना काम शुरू करूं, रिजवी बोला। क्या चाहते हो? कुछ ज्यादा नहीं, बस डिफेंस वाला जो कॉर्नर का कमर्शियल प्लाट है वो मेरे नाम होगा, इसे तुम भूल जाओगे। कीमत जानते हो आप इसकी? जो आपके नाम हो रहा है इसकी किस काम की कीमत कम ही है। चलो वो आपका हुआ, मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा। एहतशाम तो ये चाहता था कि वक्त ज़ाय होने के बजाय वो बहती गंगा से हाथ धो ले। रिजवी ने एक फाइल खोलकर इसके सामने रख दी और साथ ही पेंसिल बढ़ा दी। लो, इस पर दस्तखत कर दो। ये क्या है? पढ़ने बैठोगे तो रात बीत जाएगी और नसीर अहमद की लाश पुलिस उठाकर ले जाएगी, फिर तुम हाथ मलते रह जाओगे। इन कागजात को पढ़ने के लिए तुम्हारे पास सारी जिंदगी पड़ी है, इत्मीनान से बैठकर पढ़ते रहना, रिजवी ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। एहतशाम ने पेंसिल ली और जहां रिजवी ने कहा वहां इसने अपने दस्तखत कर दिए। रिजवी ने वो फाइल उठाकर अपने दराज में रखी और एक मोटी फाइल इसके सामने रख दी। यह है इन जायदाद के कागजात जो कभी मुश्ताक अहमद के नाम हुआ करते थे, अब ये तुम्हारे नाम है। मैंने मालिक बना दिया है तुम्हें इस जायदाद का। देखा मेरा कमाल? एहतशाम ने मुस्कुराकर चमकती निगाहों से फाइल की तरफ देखा और अपने होंठों पर जुबान फेर कर बोला, पैसा फेंक कर सब कुछ हो जाता है, सारा तमाशा पैसे के लिए होता है। एहतशाम ने कहकर जैसे ही फाइल खोली, रिजवी ने फाइल बंद करके अपनी तरफ खिसका ली। एहतशाम ने मुतहैयर होकर सवालिया निगाहों से रिजवी की तरफ देखा। ये क्या मिस्टर रिजवी, जिस बंगले में नसीर अहमद की लाश पड़ी है, इस बंगले को अपने नाम करवाना चाहोगे? रिजवी ने पूछा। क्या यह भी हो सकता है? दौलत पाने की चाह इंसान को इस कुएं के मानंद बना देती है जो कभी नहीं भरता। एहतशाम ललचाई हुई निगाहों से इसकी जानिब देखता हुआ बोला, यह पैसे से बढ़कर किसी और चीज़ में इतनी तपिश नहीं, पैसा पत्थर को भी पिघला देता है, इंसान चीज़ ही क्या है। रिजवी मुस्कुराया। जब इतना कुछ मिल रहा है तो बंगला भी क्यों जाए, लेकिन अब ये कैसे मुमकिन है? एहतशाम बोला। इस बंगले के कागजात इसी बंगले में है, कहाँ रखे मुझे पता है, आओ वहाँ चलते हैं, नसीर अहमद की लाश का जायजा भी लेते हैं और कागजात भी कब्जे में कर लेते हैं। रिजवी ने मोटी फाइल दराज में रख दी और उठकर खड़ा हुआ। इसके साथ ही एहतशाम भी खड़ा हो गया। जो ही एहतशाम ने कार का हॉर्न बजाया, चौकीदार ने फौरन गेट खोल दिया। एहतशाम कार अंदर ले गया और चौकीदार ने गेट बंद कर दिया। एहतशाम के बराबर में रिजवी बैठा हुआ था। दोनों एक साथ कार से बाहर निकले और एहतशाम ने चौकीदार से पूछा, कोई आया गया तो नहीं? वो तुमने किसी और को तो नहीं बताया? आपने मुझे मना किया था, इसलिए मैं आपका इंतजार कर रहा था, चौकीदार ने जवाब दिया। गेट बंद रखना, एहतशाम ने हदायत की। दोनों बंगले के अंदर चले गए। अंदर नीम रोशनी थी। नशिस्तगाह में जाकर एहतशाम ने बटन दबाया और रोशनी फैल गई। कहाँ है? नसीर अहमद ने एहतशाम के कान में सरगोशी की। डेड बॉडी बेडरूम में होगी, एहतशाम कहते उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ नसीर अहमद ने अपना बेडरूम बनाया था। दोनों कमरे में पहुंच गए। एहतशाम ने दरवाजे को हैंडल पर अपना हाथ रखा और धड़कते दिल के साथ हैंडल घुमाकर दरवाजा खोल दिया। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, अंधेरा था। पहले एहतशाम ने बटन दबाकर कमरा रोशन किया और फिर मुतलाशी निगाहों से पूरे कमरे में देखा। इस कमरे में नसीर अहमद की लाश नहीं थी, हर चीज करीने से सजी हुई थी। बेड की चादर पर भी कोई सलवट दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ तो कोई भी नहीं है।
रिजवी ने फिर सरगोशी की। मैंने इससे पूछा नहीं था कि इसने नसीर अहमद को किस कमरे में मारा है। दूसरे कमरे चेक करते हैं। एक काम करो, तुम देखो नसीर अहमद की लाश किस कमरे में है, मैं टीवी लॉन्ज में बैठता हूँ, रिजवी ने कहा। दोनों कमरे से बाहर निकल गए। रिजवी टीवी लॉन्ज में बैठ गया और एहतशाम एक एक कमरा चेक करने लगा। इसकी तशवीश बढ़ती ही जा रही थी। इस उलझन में एहतशाम को यह भी ख्याल नहीं रहा कि वो चौकीदार से पूछ लिया कि इसने नसीर अहमद की लाश कहाँ देखी थी। हवास बाख्ता और मुसरिब एहतशाम बंगले का एक एक कमरा चेक करता रहा। जब एहतशाम ऊपर की मंजिल से सीढ़ियों के जरिए नीचे आ रहा था तो एहतशाम के चेहरे पर परेशानी आ यहाँ थी और वो बोल रहा था, मिस्टर रिजवी, यहाँ तो नसीर अहमद की लाश कहीं भी नहीं है। जैसे ही इसकी निगाह सामने पड़ी, इसकी आवाज भी बंद हो गई और कदम जहाँ थे वही मुंजमद हो गए। एहतशाम खीरा निगाहों से सामने देखे जा रहा था। सामने का मंजर भी इसके लिए गैर मुतवक्को था।